Hello students, welcome back. Welcome to SKM Public School. This is Amit Pandey, Senior Faculty in Physics, and in class 12th we studied the last topic, Coulomb's law. Alright, so if you haven't studied Coulomb's law, I suggest you to go and first read the topic. So let's discuss Coulomb's law here again. So Coulomb's law is nothing but it is a force of attraction or repulsion between two stationary point charges. Okay, force of attraction or repulsion between two stationary point charges. And one more thing I wanted to tell you, why this is force of attraction or repulsion, because Coulomb's law takes place between two charges. Okay, two charges. So here let me highlight this. So this is the Coulomb's law I'm telling you now. Okay. Force. Now let's also discuss some of the properties. Okay. So this is, you can say, it is the force between electric charges. Okay. So Coulomb's law only calculates electric field. It doesn't calculate magnetic field. Coulomb's law से सिर्फ electric field मिलता है, magnetic field नहीं मिलता है. Okay. So this is the force between two electric charges. And what is the equation? What is the equation here? You can say this is the equation. F is equal to K Q1 Q2 upon R square n cap. N cap is nothing but directional unit vector. So n cap is directional unit vector. So F is so K is actually electrostatic force constant. This all I have explained in the previous topics. Alright. So मतलब कोई विशेष दुखी होने वाली बात नहीं है, ये आपको मैं बता चुका हूँ. So epsilon naught is electrical permittivity of free space. Okay, air or vacuum. So this was the equation. n cap direction को बताता है. ठीक है. अच्छा, कौन सी चीज इसमें क्या है ये आपको इस फॉर्मूला में समझ में आएगा. Q1 and Q2 are two charges. गाइस आप पुराना वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो. Q1 and Q2 are the two charges. दोनों चार्जेस हैं. R जो है वो डिस्टेंस को बताता है चार्जेस के बीच में. R जो है वो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को बताता है. ठीक है. तो अब दोनों चार्जेस जो हैं ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं और पॉइंट के साथ साथ स्टेशनरी है. पॉइंट चार्जेस स्टेशनरी है. पॉइंट क्यों है मैं आपको रीजन बता चुका हूँ. चार्जेस बड़े होंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और स्टेशनरी चार्ज होंगे नहीं चल पड़ेंगे चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा. सो वी रिक्वायर स्टेशनरी चार्ज. ओके, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म. ठीक है, तो ये रीजन होता है. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डील. फोर्सेस with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of other charges. ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स. Forces with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of other charges. ठीक है, मतलब कि if there is some other charge, suppose I have force between two charges है ना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स है. मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि भाई अगर दो चार्जेस के बीच में मान लीजिए कुछ भी फोर्स है. ठीक है, यहाँ पे इसको बता देता हूँ. भाई एक चार्ज हमारे पास है Q1, दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2. ओके, बीच में जो डिस्टेंस है वो है R. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई Q3 चार्ज भी है तो इस Q3 चार्ज से इन दोनों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इस पर और इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स विल बी अनचेंज्ड. समझ गए ना. भाई यहाँ पे अगर Q1 चार्ज है, यहाँ से R डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है ना, ये डिस्टेंस जो है R, तो यहाँ पे चाहे Q3 है Q4 है, doesn't matter how many charges here, doesn't matter. Why? Force between these two charges will be unaffected by presence of other charges. Okay, clear है आपको? So I'm sure कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है स्टूडेंट्स. So ये अभी हमने देखा इसमें. Alright, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. एंड अभी इन प्रॉपर्टीज को दोबारा से पढ़ो, दोबारा से एक बार एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है इसका. जस्ट गो थ्रू द टॉपिक अगेन. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर द लाइक चार्जेस. यानी कि सिमिलर चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, अनइक्वल चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा. सिमिलर चार्जेस के लिए क्या होगा, रिपल्शन होगा, अनइक्वल चार्जेस के लिए अट्रैक्शन. भाई अगर ये Q1 Q2 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सिर्फ बोथ आर पॉजिटिव. if both are positive तो इसके बीच में जो होगा वो होगा रिपल्शन.
रिपल्शन होगा क्योंकि सिमिलर चार्जेस है। लेकिन अगर यहाँ पे if this is Q1 is positive and Q2 is negative and the distance is r, तो इनके बीच में जो होगा वो होगा अट्रैक्शन। ओके, तो मतलब सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन होगा, अनइक्वल चार्जेस में अट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ लिया एक यहाँ पे। इसको हटा देते हैं हम लोग। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ एन कैप, सिग्निफिकेंस जो है ऑफ एन कैप वी गोना स्टडी हियर। तो ये यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एन कैप। दिस इज द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ये आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में अभी आपको बताने वाला हूँ, तो ये आप अभी इसको पढ़ना स्टूडेंट्स। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो इसको मैं भी डिटेल में बताता हूँ कूलम्स लॉ जो है वो क्या है अपने पास। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस देन interacting the total force on the given charge is the vector sum of the force exerted on it by other charges। ठीक है गाइस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। सुपरपोजिशन इज नथिंग बट इफ वी हैव सिस्टम ऑफ चार्जेस ना, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो किसी एक पे नेट चार्ज कितना लगेगा वो सबका वेक्टर सम होगा। well force is a vector quantity। okay, F is the force of attraction or repulsion and unit of force is Newton। so ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये बेसिक्स पता लगे होंगे। जो इसमें दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, टू प्रॉपर्टीज व्हिच हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर। वन इज हियर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वेक्टर फॉर्म। और जो सेकंड है यहाँ पे वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये आपके पास जो आ रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने इस साइड में एरो दिखाया है ये है सुपरपोजिशन। अभी आप बोलेंगे सर आप टेढ़ा क्यों लिखते हो, मेरा हाथ ऐसे चलता है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक कि मतलब ठीक है ना, इट्स इजी फॉर मी। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। तो अभी मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, लेट्स गेट रेडी फॉर वेक्टर फॉर्म। हाँ, वेक्टर फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं जल्दी से। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल स्टडी अबाउट वेक्टर फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, in this video we will be studying vector form of Coulomb's law। as you can see at the top, it's vector form of Coulomb's law। so guys, first I suggest you to study Coulomb's law before you come। okay, so this is the vector form जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। इट्स ओनली सेज द डायरेक्शन, मतलब आपके पास डायरेक्शन का क्या प्रॉब्लम है ये हम लोग को देखना पड़ेगा, डायरेक्शन क्या है। सो गाइस, वी कैन सी हियर देयर आर टू चार्जेस गिवन, है ना। एक तो देखिए ये चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, ठीक है, चार्ज ये है Q1। हियर यू कैन सी दिस इज द सेकंड चार्ज Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज r सिंपली। ओके, सिंपली चार्जेस की डिस्टेंस r है। सो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली कि भाई r12 क्या है, यू कैन सी इन द डायग्राम r21 क्या है। so what is F21 here, यहाँ पे अगर आप देख पाओ, so what is F21, what is F12, है ना। ये फॉर्मूला क्या है दोनों में, force on Q2 is given by, and you know what is F12 is equal to minus F21। so let's study about this in detail। okay, so guys, we have this charge Q1 and here let me write charge Q2। okay, and the distance is r। this Coulomb's law you know about। but what if I ask what is the charge on Q1, मतलब Q1 पर नेट चार्ज कितना है, मतलब नेट फोर्स, what is the net force on Q1। तो Q1 पे अगर आपको नेट फोर्स देखना है, you want to see the net force on Q1। so first thing, if you want to calculate net force on Q1, there is no role of Q1 now। if Q2 is positive, it will hit Q1 in this direction because the positive charges repel। if Q1 is positive, Q2 is positive, Q2 तो इसको पुश करेगा। if Q1 is negative, Q2 will attract it in this direction। ठीक है, Q1 पे फोर्स कितना लगेगा, Q2 उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉसिबिलिटी होगी। ओके, और सिमिलर फॉर Q2, Q2 के साथ भी यही होगा। Are you getting my point? So let's assume they both are positive। मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं वो चार्जेस पॉजिटिव है ना। तो ये भी पॉजिटिव है हमारे पास, और जो यहाँ चार्ज है दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव।
सो Q1 जो है वो Q2 को कौन सी डायरेक्शन में धक्का मारेगा, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। सो Q1 जो है it will hit Q2 in this direction because Q1 is positive, Q2 is positive, they both will repel each other. So if I only consider कि Q2 पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भैया Q2 पे तो धक्का लगेगा इस साइड में, Q1 will hit Q2 in this direction and similarly Q2 will hit Q1 in this direction, ठीक है, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे. So the very first thing, if someone asks what is F12, that guys please pay attention, F12 means force on one due to 2. Force on one यानी कि 1 means this is the 1, this is Q1. So force on 1 due to 2 मतलब कि 2 की वजह से 1 पे कितना फोर्स लगेगा, 2 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है. So that is K Q1 Q2 upon, simply it is R square. But now tell me one thing guys, फोर्स ऑन वन, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन वन, वन पर फोर्स जो लगेगा तो Q2 वन को कौन सी डायरेक्शन में फेंक रहा है, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन. तो Q2 Q1 को कौन सी डायरेक्शन में फेंक रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा. ओके, सो दिस डायरेक्शन, द लाइन विच जॉइंस 2 to 1 विल बी कॉल्ड R21, ठीक है भाई. ये जो डायरेक्शन है इस साइड में जो है इसको हम लोग ले लेते हैं R21 या R12, द लाइन विच जॉइंस 1 to 2 और 2 to 1, द लाइन विच जॉइंस 2 to 1 और 1 to 2, भाई ये यहां से इसको इधर लगा देंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो डायरेक्शन में डिस्टेंस है इसको मैं R21 ले लूंगा, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो यहां पे मैं लिखूंगा इसको R21 का स्क्वायर R21 कैप, ठीक है भाई. R21 की डायरेक्शन में R21 इज 2 to 1, 2 to 1, so this is 2 and this is 1, so this is 2 to 1, ठीक है. So that is called R21. In the similar manner, खाना बन गया, सीटी बन गई, okay, that's great. जितना जल्दी खाना खा सको खाओ. What will be F21 means force on 2 due to 1. भैया force on 2, अब हम लोग को 2 पर फोर्स से मतलब है force on 2 due to 1, due to 1 यानी कि 1 कितना फोर्स 2 पे लगाएगा इससे मतलब. तो जस्ट टेल मी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो भाई 2 पर 1, so 1 is positive, 2 is positive. Now I am asking force on 2, तो what would Q1 will do with Q2 if I want कि भाई Q2 पे Q1 क्या इफेक्ट डालेगा, since Q2 is positive, so Q1 will hit Q2 in this direction, and this direction which is from 1 to 2 will be called R12. Just assume it is a straight line, so this direction will be called straight line. समझ पा रहे हो ना, this direction is R12. So formula will be again it will be K Q1 Q2 upon R12 square R12 cap. Okay, R12 square R12 cap. Now you can also see that R12 is equal to negative of R21. Why? अरे because R12 इस साइड में है, R12 जो है वो why this is negative, भाई this is negative because जो R12 है 1 से 2, देखो ये 1 से 2 तो इधर है और 2 से 1 इधर है, so they both are opposite to each other. It means कि we will have to use negative sign here. Okay, I hope you are getting this बच्चों. Can you see the marker? यहाँ पे है, ये दिखता भी नहीं है कहाँ पे है. Okay. So इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ. There are no need to have 2 times negative. Okay. ठीक है, but this is not the complete of look, so we have to go to the next page. So R12 is minus R21. So since R12 is minus R21, so you can check one thing from this equation. Yes,
if I change this R21 from R12, अगर R12 को R21 लिख दूं तो all I need to do is just introduce negative sign. R21 को अगर R12 लिखूंगा तो negative sign आ जाएगा. बाकी सब कुछ तो सेम है, rest of everything is same. K is same, Q1 is same, Q2 is same, R21 is same. Okay, so R21 and R12 is different only. So using this equation, I can rewrite it F12 is equal to minus of F21. F12 is equal to minus F21. So this is vector form of Coulomb's law. ठीक है? अरे समझ गए ना भाई, इस इक्वेशन में कोई बड़ा फर्क नहीं है. There is no big difference here. देखो सब कुछ सेम है यार. ये देखो यहाँ पे K Q1 Q2 सेम है, यहाँ पे K Q1 Q2 सेम. ठीक है? The only difference is कि भैया ये और ये जो है ये अलग आ रहा था अपने पास, तो उसको हमें पता है कि भाई यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दो, so you will be getting the relation here. ठीक है? Alright, so this is the vector form of Coulomb's law. इसको मैंने मिटा दिया, एक बार मैं और इसको ढंग से लिखता हूँ so that आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स. So Coulomb's law is basically this is, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखते हैं, just a minute. कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, धीरे धीरे I'll be habitual of this, प्रैक्टिस नहीं छोड़ने का. तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसमें तो एक चीज आप मुझसे भी सीख सकते हो कि देखो मुझे दिक्कत आ रही है बट मैं कर रहा हूँ उसको, भाग नहीं रहा हूँ, छोड़ के भाग नहीं रहा हूँ, तो भाई कभी ना कभी तो सीखेंगे. कब तक नहीं आएगा यार. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो वुमन. प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट. सो इफ आई एम गेटिंग प्रॉब्लम, I am getting irritated with this, but I am doing it. Okay, I am not running. Okay, so this was about vector form of Coulomb's law. तो next recording में हम लोग पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल.